afternoon, sir. Good afternoon. ये जो एनसीईआरटी वाली बुक है ये अवेलेबल है आप लोगों के पास? सर सुमिता अरोड़ा वाली है। नहीं, मैं आपको ना ये एक वेबसाइट बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लो ये वेबसाइट को। और सुमिता अरोड़ा वाली है वो तो है ही है, वो तो हमने फॉलो की हुई है बुक। ठीक है, आप लोग इसकी सॉफ्ट कॉपी को आप रेफर कर सकते हो, दैट इज यू नीड नॉट टू बाई दिस बुक डिस्कशन के लिए। ये अपीयर हो रही है ये विंडो आपके सामने? यस सर। ठीक है, तो इसके अंदर ये है दैट इज एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, इसमें ये कंप्यूटर साइंस नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स की आपकी बुक्स है, मैथ्स की, फिजिक्स की, एंड यू कैन डाउनलोड एनी ऑफ द बुक। ठीक है, तो इसको हम थोड़े दिन डिस्कस करेंगे, दैट इज इन दी अपकमिंग क्लासेस। ठीक है, ये है ncrtbooks.guru। आगे ये इतना खोल लेना आप, ये खुल जाएगा फिर ये लिंक आपके लिए। ओके सर। सो फ्रॉम दिस बुक ओनली वी विल डिस्कस, जो इसकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है, सो वी विल टेक दोज क्वेश्चंस टुडे। ये क्वेश्चन नोट्स की फॉर्म में है। So good afternoon to Ishan and Mannat also. And I am expecting that everyone will switch on his camera so that we can start the class. Sir, I'm facing some network issues, so I can't on my video. Okay. So yes, I am again repeating for everyone. ठीक है, so we will discuss in the next few days the exercise or notes from the NCERT books. So I have already shared the website. This is the website from where I have already shared these topics with number of students. अगर किसी के पास नहीं है तो इस वेब लिंक के ऊपर ये अवेलेबल है एनसीईआरटी बुक्स, एंड दिस इज नॉट फॉर आईपी। इस लिंक से आपको अगर मैथ्स की एनसीईआरटी बुक चाहिए या फिजिक्स की चाहिए, अकाउंट्स की चाहिए, बीएसटी की चाहिए, ऑल दी बुक्स आर अवेलेबल ऑन दिस लिंक, so you can download. This is the link ncert.guru. So if you want me, I can paste it on. ठीक है, यहाँ से चेक करना है, यहाँ से कर सकते हो आप लोग चेक। और अगर ये नोटपैड वाली फाइल, ये लिंक है, इसको आप डाल देना गूगल में ncrtbooks.guru, and then you will find this website link, and from here you can download all the NCERT books for not only IP but for all the courses, all the subjects. So today we will share the questions from the NCERT book, and this is the chapter Introduction to Computer System. So there is a question number 7. So the 7th question is, name the input and output devices used to do the following. तो इसमें से हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन दी ये जो ABCD पार्ट्स इसके अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, सो यू हैव टू मेंशन कि कौन सी इनपुट डिवाइस है ये जो पर्टिकुलर टास्क काम करती है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू मन्नत शर्मा. Mannat has joined the classes after a number of days.
So I am Yes, requesting sir. everyone to keep your camera in the working mode. So this is humble request on the second session of the new year. So the question is, name the input and output devices used to do the following. First is to output audio. Sir, it's ऑडियो को speaker. output करने के लिए कौन सी डिवाइस है हमारे पास? Speaker. Speakers we have. Clear. So good start by Manat. So next question is for Gurleen, to enter the textual data. Sir, keyboard. Keyboard. So keyboard is the right answer. Next we move to the third question, to make the hard copy of a text file. So next is Shriya Seth. Sir, printer. Printer. So printer is the device that we make use of to convert a text file to a hard copy. The question number D is to display the data and information. So who is next in the pipeline? So the fourth person is Gunveer Singh. Sir, monitor, sir. Monitor. Good. So we move to the E part, to enter audio based command. So this question goes to Mehak. Sir, microphone. Microphone, to enter the audio based command. Good. So that's what we are practically doing now. So मैं अपनी साइड से माइक्रोफोन का यूज कर रहा है, आप अपनी साइड से यूज कर रहे हो. So good. Next is to build 3D model. So this question will go to the next. Yes, Tarunjot. Next is Ishan. Sir, 3D printer. 3D printer. So 3D printer is basically used to build the 3D models. And the last in this question number 7 is to assist a visually impaired individual in entering data. तो उसके लिए हम कौन सी device use करते हैं? From the input and output devices. To assist the visually impaired means the person who is visually disabled. So how they basically enter the data. So who will be ready to answer? Maybe Romika. I am again repeating, Romika, Navdeep Singh, Tarun Jot, everyone, Dilbag Singh, please keep your camera in the working status. So the last question is to assist the visually impaired individual in entering the data. To assist. So which device we use, input or output device that we use? So yes, Romika, Dilbag. Anyone who can answer. So this question goes to everyone. Yes, Shriya. Sir, maybe it is Braille keyboard. Yes, Braille keyboard is there. Basically no other devices there, no, which basically the visually impaired people can work upon. So definitely it should be Braille keyboard. No, recently there was a, in last couple of weeks we have a Braille Day has been celebrated. Clear. And basically this is how the language has been worked out. All the languages have been worked out with the Braille, the Braille technology, how they visually impaired, basically they with the touching on that particular book. Clear. तो उसमें क्या होता है, that is now the words are basically are put in a that way that by touching that particular words they can identify and get the words. So we move to the next question is there, that is to identify the category. Clear. From the following you have to identify the category, system, application or programming tool of the
फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। तो ये हमने बताना है कि ये सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में फॉल करता है। सो वी हैव बेसिकली 3 कैटेगरीज, system category, application category, and programming category. So before we start answering on these questions, so anyone who can differentiate what is this system software, application software, and programming software tool? कोई बता सकता है? किसी को कुछ पार्ट ही सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर किसी को पता है, what is system software? So Shriya is ready to answer. Yes, Shriya. Sir, system software usually is used for the smooth running of the system. Application software is used for the smooth running of the application, that is any app, and the programming tool software that is used for the smooth running of the program, like compiler, interpreter, such that. So before I answer this one, so we will move to the this book only. So in this book, these topics have been yes. So no. So this is the system software first is, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है हमारे पास? सिस्टम सॉफ्टवेयर में वेरी फर्स्ट है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। यार जैसे श्रिया ने अभी बताया, श्रिया हैज कन्वेड that all the software which help in running the system, they fall under the category of system software. तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, मैकिंटॉश हो गया, फिर उबंटू हो गया, फिडोरा, these are the all examples of iOS and Android, these are for mobile devices. नंबर 2 पे हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में सिस्टम यूटिलिटीज। सो सिस्टम यूटिलिटीज में क्या होता है हमारे पास? नो, इन सिस्टम यूटिलिटीज मींस there are certain components which help in running the system but they don't come with the operating system. कुछ ऐसे components हैं जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं आते, बट दे आर वेरी वाइटल, लाइक एंटीवायरस है हमारे पास, डिस्क क्लीनर है, डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है। यस, वंशिका बता सकते हैं ये डिस्क क्लीनर क्या होता है? डिस्क क्लीनर सर, आई थिंक कि डिस्क क्लीनर जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर को जो स्पैम वाली फाइल्स हैं या फिर और फाइल्स हैं उसको क्लीन करने में, जो भी हमारे पास अनवांटेड फाइल्स जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, दैट वी कैन रिमूव विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्क क्लीनर टूल। सिमिलरली डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है, सो दिस बेसिकली कंप्रेसेस द सर्टेन फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर्स। सो ये all these things are part of system utility which doesn't come with the operating system but they are very vital for running the system. थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स। क्या होता है डिवाइस ड्राइवर? एनीवन? So let us look at yes, anyone other than Shriya has already answered a number of questions. So what is a device driver? Very common term used in programming and कंप्यूटर साइंस में बहुत कॉमन टर्म यूज करते हैं हम, डिवाइस ड्राइवर। एनीवन हु कैन से अबाउट व्हाट इज अ डिवाइस ड्राइवर? जितना भी आपको पता है, आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू टेल द एग्जैक्ट आंसर। यस, मन्नत। Sir, it is a set of programs which is used to like store instructions. कोई एग्जांपल बता सकते हो डिवाइस ड्राइवर की एग्जांपल? No, जैसे आप देखो, जैसे हम अपने सिस्टम के साथ हम ये प्रिंटर अटैच करते हैं, तो प्रिंटर इज ए डिवाइस दैट वी हैव अटैच्ड विद आवर सिस्टम। तो उसको रन करने के लिए वी रिक्वायर द डिवाइस ड्राइवर। तो जितनी भी डिवाइसेस हैं, लाइक द कीबोर्ड इज देयर, तो फॉर ऑल द डिवाइसेस वी रिक्वायर द डिवाइस ड्राइवर। वो जो सॉफ्टवेयर है दैट विल रन दैट पर्टिकुलर डिवाइस, ठीक है। तो जितनी भी हम डिवाइसेस सिस्टम के साथ अटैच करेंगे and which are the part of the system, so for each and every device we require the device driver to run that particular device.
तो द बेस्ट एग्जांपल इज कि जैसे हम प्रिंटर यूज करते हैं, ठीक है, और कोई भी डिवाइस अगर हम अटैच करते हैं अपने सिस्टम के साथ, सो वी नीड द ड्राइवर टू रन दैट वेरी डिवाइस। तो ये तीनों जो कंपोनेंट है, ऑल थ्री कंपोनेंट्स दे आर पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड देन वी हैव सर्टेन प्रोग्रामिंग टूल्स। कोई प्रोग्रामिंग टूल्स के बारे में बता सकता है? व्हाट आर द प्रोग्रामिंग टूल्स वी हैव? प्रोग्रामिंग टूल में आ जाता है बेसिकली नो, जैसे हम अपने सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए कंपाइलर है, असेंबलर यूज करते हैं। तो कई जगह इसको प्रोग्रामिंग टूल में इंक्लूड किया हुआ है, बट कई जगह पे आप बुक्स में पढ़ोगे तो इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है। जैसे हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़े ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विच बेसिकली हेल्प दी सिस्टम टू रन, तो ये प्रोग्रामिंग टूल में भी काफी पार्ट बन जाते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी ये पार्ट बन जाते हैं। सो प्रोग्रामिंग टूल इज क्लियर। जैसे हम कंपाइलर यूज करते हैं और जैसे हम बोलते हैं पाइथन इज ए इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। ये इंटरप्रेटर क्या होता है? किसी को पता है व्हाट इज इंटरप्रेटर? यस वंशिका। सर इंटरप्रेटर का मतलब है वो लाइन बाय लाइन जो है वो लाइन को इंटरप्रेट करता है, और कंपाइलर मतलब एक ही साथ सबको एग्जीक्यूट कर देता है कोड को, लेकिन इंटरप्रेटर का मतलब है जो कंपाइलर है वो पूरे के पूरे सोर्स को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, और जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन सोर्स को जो सोर्स कोड है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, साथ साथ में इसको एग्जीक्यूट भी करता है। ठीक है, जो कंपाइलर बेस्ड है वो एग्जीक्यूट नहीं करता, वो सिर्फ सोर्स टू ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, और जो इंटरप्रेटर है वो साथ साथ में ही उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके साथ ही उसको एग्जीक्यूट भी कर देता है। एंड द पाइथन इज ए इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। तो ये भी क्लियर होना चाहिए हमें। सो नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन पार्ट, जहां से बेसिकली क्वेश्चन हमने शुरू किया था। So this is the question we have. Identify the category, that is system category. System है, application है, programming tool है, from the following software. So the first is the compiler. तो compiler किस category में करेगा fall? Yes वंशिका आप ही बताओ। प्रोग्रामिंग टूल। प्रोग्रामिंग टूल में ये कर जाएगा fall, ठीक है। Similarly the next is assembler. Yes मनोज शर्मा। So this is also programming tool. दिस इज आल्सो प्रोग्रामिंग टूल, ठीक है। और कई जगह में इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर में रखा होता है, सो यू डी नॉट बी गेटिंग कंफ्यूज्ड इन दैट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गुणवीर आप बताओ ये उबंटू किस में फॉल करता है? नेक्स्ट इज सर सिस्टम में सर। हाँ ये सिस्टम में करेगा, बिकॉज दिस इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उबंटू क्या है हमारे पास? दिस इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम, सो दिस विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस सिस्टम ओनली। And the last is text editor. तो text editor किस में करेगा फॉल? So anyone ready? Yes, Shriya is ready to answer. Yes, Shriya. Sir, application software. ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी ये डेफिनेटली टेक्स्ट एडिटर हम खुद भी बना सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर इज नॉट, जैसे नोटपैड है हमारे पास, नोटपैड इज ए टेक्स्ट एडिटर। तो ये सिस्टम को रन करने में नहीं कुछ भी कंट्रीब्यूट करता, ठीक है। इफ यू लुक एट द डेफिनेशन, तो ये सिस्टम को रन करने के लिए नहीं है, ये जो हमें रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट को हैंडल करने के लिए ये है। तो दिस विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस एप्लीकेशन, बिकॉज नोटपैड से हमारा सिस्टम तो नहीं चलता हमारा, सो दिस विल नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस वन। सो नेक्स्ट वी मूव टू द 9th क्वेश्चन। So 9th question is convert the following into bytes. So I think you might have ready with the copy pen also. First is 2 MB. तो 2 MB को अगर हमने bytes में convert करना है तो करके देखो कितने bytes बनता है ये। Yes, I will show you the question also. This is the question. पहले है 2 MB है, फिर 3.7 GB है, फिर 1.2 टेराबाइट है। जैसा भी सोल्यूशन है यू कैन डिस्प्ले इन फ्रंट ऑफ योर डिवाइस आल्सो। मेरे को यहीं से आंसर मिल जाएगा।
बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट इज 2 मेगाबाइट्स में कितने होते हैं हमारे पास, 1024 KB होते हैं इसमें, ठीक है। और फिर 1 KB के अंदर कितने बाइट्स होते हैं, 1024। सो इसका आंसर आएगा 2 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए ये क्या बनेगा मेरे हिसाब से, 1024 कितना होता है, 2 4 8 16 32 64 128 256, ठीक है। तो ये 2 रेज़ टू पावर मेरे हिसाब से 21 बनेगा, ये 2 रेज़ टू पावर 21 बाइट्स। बाकी आपके हाथ में कॉपी पेन है, यू कैन बेटर कैलकुलेट दिस वन। ये मैथमेटिक्स भी आ गया बीच में, सो इट विल टेस्ट हाउ यू एक्सपोनेंट और पावर को कितनी अच्छी तरह से, 8th क्लास का क्वेश्चन है। नाउ दिस इज 8th क्लास मैथमेटिक्स क्वेश्चन, और चैप्टर का नाम है, चाहे आप इसको चैप्टर को भी वेरीफाई कर लेना, दिस इज एक्सपोनेंट एंड पावर, द चैप्टर नेम इज एक्सपोनेंट एंड पावर इन एनसीईआरटी बुक। सो आई रिक्वेस्ट अगेन अभिनंदन, दिलबाग, नवदीप सिंह, ईशान किशोर, मुस्कान एंड गुरलीन सिंह, तरुणजोत, सो डोंट गो फॉर ब्रेक। और अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, हर्षिता इज वेरी फास्ट इन कैलकुलेशंस। यस महक, हुआ कोई तीनों में से कोई एक क्वेश्चन हुआ? नो सर, अभी कर रही हूँ। कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी करो, ये मैंने आपको हिंट दे दिया सारा इसका, एंड आप में से कोई समझाएगा इसका आंसर कैसे आएगा। थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट इतना भी चैलेंजिंग नहीं है दैट यू आर नॉट एबल टू आंसर दिस वन। मैंने ये बताया 2, ये मेगाबाइट्स को पहले हम कन्वर्ट करेंगे किलोबाइट्स में, और फिर किलोबाइट्स को हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल बाइट्स में। बाइट्स में आंसर करना है हमने। 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, और 1 MB के अंदर 1024 किलोबाइट्स होते हैं। So let's start with paint. तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन है हमारे पास, 2 MB को हमने कन्वर्ट करना है, 2 MB। सो 2 MB के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट इज बेसिकली 2 इंटू ये बनेगा, मल्टीप्लाई का सिंबल रखना है, 1024 KB, 1024 KB, ठीक है जी। और 1 KB कितना होता है, 1 KB इज इक्वल टू, दैट इज 1024, ये तो MB के लिए है हमारे पास, और 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। ठीक है, तो ये KB के लिए है, दिस इज फ्रॉम KB, हाउ द KB वी हैव कैलकुलेटेड दिस वन, ठीक है जी। और फिर इसकी मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है, दिस इज 2 इंटू 204 होता है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 10, और नेक्स्ट आ गया हमारे पास, फिर से आ गया 2 रेज़ टू पावर 10 बाइट्स, ठीक है, बाइट्स यहां पे लिख लेना। एंड देन इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो सभी का बेस कितना है 2, इसकी पावर कितनी है 1, तो ये 1 प्लस 10, तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 21 बाइट्स। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर कैलकुलेट करना है कैलकुलेट कर लो, अगर कैलकुलेट नहीं होता सो यू सिंपली गिव दिस आंसर 2 रेज़ टू पावर 21। यस गुणवीर, क्लियर है ये? यस सर। सो नेक्स्ट है हमारे पास, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज नॉट हियर, दिस इज
ये है। नेक्स्ट है हमारे पास 3.7 GB। अब एक आधा तो आंसर निकाल लो आप लोग। 3.7 GB। वन GB is equal to 1024 megabytes। काफी हिंट दे दिया आपको। सर वहां 2⁻10 कैसे आया? किसका? वो 1024 किसके इक्विवेलेंट होता है? ये 1024 को आप कैलकुलेट करो ना, इसकी फैक्टराइजेशन कर लो 1024 की। दिस इज 1024। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास 512 बन जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, ये कितना बन जाएगा? 256। ठीक है जी। फिर से इसको 2 से डिवाइड करो, ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 128। फिर से इसको डिवाइड करो 2 से, ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 64। फिर से इसको 2 से डिवाइड करो, दिस विल बिकम, क्या आएगा ये? कितने 2 हो गए हमारे पास? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो अगर 2 को हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? अगर हम 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 2⁻10। यस नवदीप, क्लियर है? और कैमरा भी ऑन रखो अपना। यस वंशिका। यस सर। निकला आंसर या नहीं? सर आई कैलकुलेटेड इट एज 3.7 into 2⁻30। 2⁻30। तो ये इतना ही आएगा, ये 2⁻30 राइट लाइक दिस। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 GB कितना होता है हमारे पास? 1 GB बनेगा, ये 2⁻30 बनेगा, ये 1024 एक नेक्स्ट 1024 ये आ जाएगा। ठीक है ना? ये 1024 into 1024 दिस इज इक्वलेंट टू मेगाबाइट। तो जब हम इसको 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2⁻30 बन जाएगा। सो दिस विल बी 3.7 GB विल बी इक्वलेंट टू, ये आ जाएगा हमारे पास 3.7 into जो वंशिका ने बोला दैट इज 2⁻30। यस गुड। एंड सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट दी लास्ट क्वेश्चन। कौन सा था हमारे पास? जो थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास दैट इज 1.2 टेराबाइट। तो टेराबाइट भी अब आपको क्लियर है। 1 टेराबाइट इज इक्वलेंट टू किसके इक्वलेंट होता है? 1 टेराबाइट इज इक्वलेंट टू, बोलो शाबाश। यस वंशिका। 1024 गीगाबाइट। यस वेरी गुड। तो इसको भी आप कैलकुलेट कर लो 1024 GB एंड 1 GB इज इक्वल टू, अभी आपने कैलकुलेट किया है 1 GB इज इक्वल टू 2⁻30 और ये कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 2⁻10। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2⁻40। और वहां पे कितना था हमारे पास? टेराबाइट कितना था? 1 टेराबाइट ही था।
क्वेश्चन में, तो 1.2 था, तो 1.2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, सो यू गेट मल्टीप्लाइड विद दिस इज 1.2 टेराबाइट, तो आप इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? And if you want to go into the details of this question, so you have to go through the basics of power and exponent given in grade 8. So अगर किसी को ज्यादा डाउट है तो ग्रेड 8 को एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेना। मैथमेटिक्स का चैप्टर है ये, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। यस गुरलीन, क्लियर है ये? Now we move to the next question. Is the question number 10th is, what is the security threat involved when we throw away electronic gadgets into the that are non-functional? So when the electronic gadgets are non-functional, we throw them out. So what are the security threats we have? So this is very general sort of a question. Is yes, Amarveer? Like stealing of the personal information and photographs. Yes. Second, we can have stealing of account information to get money and other things. Yes. Third, we can rate that crashing of the system and damage to the softwares. So clear, whenever the any electronic device is not functional, so we have to very carefully dispose it of. You know, a lot of electronics companies, they have basically started a campaign like Panasonic is there, and you know, whenever the electronic gadget of any company is not functional, so you can give to them and they can safely dispose of, and that will also help in reducing the e-waste also, because they have a mechanism how to basically process the e-waste. So basically this serves a basically two-way purpose in that also. So now we move to the next question. Is write down the type of memory needed to do the following. So yes, Gurleen. Yes sir. हाँ गुरलीन, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? टू स्टोर द डाटा परमानेंटली। सर सिंपली हार्ड डिस्क हो सकता है और एसएसडी भी हो सकता है सर। हाँ, तो एंड द सेकंड इज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। एग्जीक्यूट द प्रोग्राम सर, इसमें तो सर वेरियस थिंग होनी चाहिए, सीपीयू होना चाहिए अपने पास सर। अरे भाई, हमें मेमोरी के ऊपर फोकस करना है, सीपीयू इज नॉट ए मेमोरी। सीपीयू के अंदर कुछ भी नहीं होगा तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा सर। चलो ठीक है। यस, हु विल आंसर एग्जैक्टली द बी पार्ट? अगर किसी को क्वेश्चन क्लियर है, सो हु विल आंसर? यस, वंशिका। कैश मेमोरी। हाँ जी, कैश मेमोरी, not cache memory. Basically we will use here RAM. We will answer here main memory. Main memory is RAM, so the answer will be RAM, not cache memory. And the last question here is the C part, to store the instructions which cannot be overwritten. To store the instructions, which memory we will use which cannot be overwritten? So I will see who's ready to answer this one. Gurleen is ready. हाँ, yes गुरलीन बताओ आप। सर रोम हो सकती है, ROM। हाँ, so basically ROM की जो instructions हैं ना, those instructions we cannot overwrite. Clear? So उन instructions को हम embed किस टाइम पे करते हैं? ROM का यूज क्या है? Who will tell me the use of ROM? ROM का यूज कहाँ पे होता है? Yes, हर्षिता। गुणवीर, अमरवीर। डाटा स्टोरेज सर। डाटा स्टोरेज तो है बेटा, मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि रोम का यूज कहाँ पे होता है? कभी अगर हमने किसी को बताना हो कि ये रोम का यूज है, दैट इज नो हाउ वी विल टेल एंड एक्सप्लेन दैट द रीड ओनली मेमोरी का काम क्या है, उसका काम, व्हाट इज द वर्क ऑफ रीड ओनली मेमोरी?
Yes, Amarveer. Sir, it stores instructions which are essential to start a computer, the computer BIOS. That's not the case. Basically, to start the computer, its role is not to start the computer. You know, the instructions in the read-only memory are embedded into ROM at the time of manufacturing. तो इसमें क्या होता है, जब भी हम अपना लैपटॉप और कंप्यूटर ऑन करते हैं, सो इन दी बिगिनिंग जो इंस्ट्रक्शन वहां पे आती हैं, क्लियर, जैसे अगर आपका लिनोवो का सॉफ्टवेयर है तो लिनोवो आ जाता है, अगर एचपी का है तो एचपी डिस्प्ले हो जाता है, और अगर लेट्स से ये किसी और कंपनी का है तो वो उसका लोगो डिस्प्ले हो जाता है वहां पे इन दी बिगिनिंग. सो ऑल दोज इंस्ट्रक्शंस आर एम्बेडेड इनटू रीड ओनली मेमोरी. क्लियर? एंड द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज वी कैन नॉट ओवरराइट द कंटेंट्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी. जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, दैट इज दैट we cannot override the contents of which memory. Clear? To store the instructions which cannot be overwritten. So that is the answer is given by Gurleen. So this is how we have gone through the this chapter, and today we have discussed the first chapter of the NCERT book, and I have shared you with the link also. So this is the link from where I have downloaded these chapters, and these chapter I have already shared with number of students. अगर किसी के पास NCERT बुक की सॉफ्ट कॉपी नहीं अवेलेबल है, so you can download this copy from this link ncert.guru. तो आप इसको गूगल में डालोगे तो आप इसमें से NCERT की बुक्स जो है मैथ्स के लिए और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं. So tomorrow we will share we will discuss the problems given in the chapter number 2. Chapter number 1 में किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई और क्वेश्चन है, so you can ask any question. ठीक है? So गुरलीन आप बता दो, आज हमने डिस्कस किया, क्या किया है हमने आज? सर सिंपली हमने सर आज क्वेश्चन आंसर मीन जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो थे बैक साइड में, वो डिस्कस किए हमने. पहले चैप्टर के बैक साइड पे कौन सी बैक साइड पे? सर बैक एक्सरसाइज सर. हाँ, जो बैक एक्सरसाइज है, मींस द एक्सरसाइज व्हिच इज नो एनसीईआरटी बुक में जो लास्ट पे जो नोट्स दिए हुए हैं, वी हैव डिस्कस्ड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दैट वेरी चैप्टर. जो चैप्टर का नाम था दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम. So next you can download the next chapter, that is emerging trends, chapter number 2, and we will have a discussion on that topic tomorrow. Clear? And most probably जैसे कल हमारी discussion हुई थी on the pre-board exam, so most probably you will have your pre-board exam again in the month of January, and that will be no handwritten sort of exams in the school campus only. ठीक है? फिर उसके बाद आप लोगों के फाइनल एग्जाम होंगे. सर नाउ इट इज फाइनल, आई थिंक जनवरी में. जनवरी में मेरे को लगता है एक बार अभी प्री बोर्ड होंगे, जैसे आपने कल पूछा था. मे बी आपकी विश पहुंच गई है वहां तक. यस्टरडे आपने बोला था कि एक बार प्रैक्टिस होनी चाहिए, सो मे बी दैट वॉइस हैज रीच द मैनेजमेंट आल्सो. तो एक बार आप लोगों के पहले प्री बोर्ड होंगे, जो अभी तक मेरे पास टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन है. डोंट टेक इट एज फाइनल इन्फॉर्मेशन. ठीक है? So it's not final, but most probably you will have first your pre-board exam in the month of January, and next in the month of February you will have your final exam. Both exam will be in the school campus only, in the handwritten form only. Yes. So I hope that tomorrow you will come into the session by reading the second chapter, that is emerging trends from the NCERT book. So yes, गुरलीन क्वेश्चन है, जल्दी पूछ लो. हाँ जी सर, हैंड रिटन पक्का है? हैंड स्कूल में ही होंगे? नहीं, इसमें अगर तो स्कूल में आओगे तो यार स्कूल में ऑनलाइन थोड़ी एग्जाम होंगे, एक तो क्लियर ही है चीज. ठीक है? और अगर ऑनलाइन ही अगर आपके एग्जाम ऑनलाइन ही होते तो प्री बोर्ड की अब दोबारा कंडक्ट करने की क्या जरूरत है. तो ये प्री बोर्ड, जैसे मेरे को लगता है अमरवीर ने कल ये पॉइंट डिस्कस किया था कि एक बार हमारी प्रैक्टिस हो जाती, तो मे भी मेरे को लगता है यही पॉइंट पहुंच गया, वहां पे भी प्रैक्टिस हो जाए तो दैट्स अ गुड थिंग. सर स्कूल्स विल बी रीओपनिंग फ्रॉम 18.
यस, ये मैं आपको टेंटेटिवली बात बता रहा हूँ। डेफिनेटली 18th और 19th के आसपास आप लोगों के प्री बोर्ड स्टार्ट होंगे, and now the school is working on this, how to basically come out with now जैसे transport है, so how the students will come into the school and all those issues. Yeah? और जब भी कोई और further detail पता लगेगी, so we will share with you. So thank you very much beta for being in the class, patiently listening to the class. Thanks. Thank you, sir. Thank you, sir.